box, and we'll be conducting online examinations for UTU students for the second batch of students now. And exams will be starting from 15th of July. I hope everybody knows that. And tomorrow, that is 13th and 14th, we have mock tests scheduled. So that is why we are here to present you today the training for proctors. How will the invigilators online or remotely will proctor the students? So very first session would be 10-15 minutes explaining you about how will the candidates window look like and how will candidate. It is very important for everybody process at the students end also. Only then you will understand how will the proctor be proctoring and what all will be visible to the proctors. So by the time I'm taking the session, it is requested, that all the proctors mute yourself. Do not unmute in between. Also, there will be a question with and please, if you want, I'll screen and we'll be explaining you the complete process, right? So if you have any questions, you can go now. And early we will be proctor screen at the end, and once the complete session is over, only then unmute yourself and ask the questions. Right? By that point in time, there should no distraction request yourself and please with Neil. Sunil, to please share your screen once, and we'll take doctors till a student take the assessment. Sunil, please share your screen. Okay, ma'am. Yeah. Please mute your. So this is the screen that you can view. This is the URL that will be visible to the proctors and to the students also. And everybody will have to respectively join from their respective login ID and password. So student will log in with the login ID password and will be able to proceed ahead. As soon as student enters the login ID password, this is the screen that will be visible to you, right? Where you can see mock test is assigned to a student. Test signed is 2, that means twice the candidate is allowed to take a mock test. Whereas for final exam, only 1 attempt will be given. Test taken is 0 until and unless any test is submitted. Once you submit the assessment, then the test taken will be 1 or 2 as per the attempts assigned to you. Test duration for mock is 30 minutes and candidate will have to click on continue to proceed ahead. Now, students, because this is a remote proctored exam, so students mandatorily need to have a laptop or a desktop or a mobile phone with a front camera and microphone enabled. Also, internet connection is must, because without internet, nobody will be able to give the online exam, right? So this is the environment check page for the students, wherein students will be proceeding ahead and their camera, microphone, browsers, etc. needs to be checked. Please click on proceed now. So once all the checks are completely fine, only then the students moves ahead. In case camera or microphone is not enabled, then students will have to do that, and the complete process will be explained to the students in a PDF manual or the video manuals, which will be sent to the students before the mock exam and before every final exam. So students can have to view videos and the PDF manuals properly. In the mock test, they have to practice everything so that on the day of final examination, it will not be a surprise for them. Right? And they do not face any issues. So rather, any issues before the final exam during mock should be resolved. Now click on continue if all the checks are fine and move ahead.
This is called the approval window, wherein candidate has to click his real-time image. Sunil, you can close the browser and log in again in case you're facing any issue. You can close the browser. Rather, log in again. Yeah, please log in again. So candidates click his image, his ID proofs image, and proceed ahead. Pranav, you are also there on call. I would request you to please log in as a candidate, because on the proctor screen, I would want to see two students simultaneously. I think there is some problem in your camera which is not capturing your image here. Pranav, are you there? So Sunil, everything has to be small letters only. Pranav, if you are there, can you please speak up and share your screen? We are losing on time now. Yes, ma'am, I'm sharing. Sunil, you may please, you need to log in, Sunil, but you can just stop sharing your screen because you're facing some issues in the camera. Let Pranav share it. So is everybody able to see, another screen that is shared by Pranav now? No. I can see that. You may please, pin that screen as well in case you would want. I am able to see one screen that Pranav has shared. Yes, ma'am, it's fine. Okay. Yeah. There is a name called Pranav Tiwari. Please, pin that screen because I am able to see the screen. If people are not able to see, you have to please see that. Yes. Yeah, it is visible, Pranav. Yeah, so this is how you will, the candidates clicks his ID proofs image and move ahead. This is called the waiting lounge or the instructions page, wherein students need to wait for a few minutes and read all the instructions carefully. So right now for the mock examination, it is 30 seconds, whereas for final exam, students will also get a chance, half an hour chance to come on this page, wait for some time, and then only proceed ahead to take the test. So for example, the test is starting from say 1 o'clock, starting from say 10 o'clock, 9:30 is the time on the day of examination when the student can log in. Right. So now you see proceed now button is green in color. Pranav, please check this box and move ahead. Once the candidate has read all the instructions, he can click on the agreement and proceed now. Click on proceed now to move ahead. Now, जब तक बच्चा इस पेज पे है यानी स्क्रीन पे है, जब तक वो इंस्ट्रक्शंस रीड कर रहा है, by that point in time, candidate will not be visible to the proctor.
यानी जब तक बच्चा वेटिंग लाउंज में है तब तक प्रॉक्टर्स को नहीं दिखेगा। जैसे ही बच्चा अपनी टेस्ट स्क्रीन पे आ जाता है, यानी पहले क्वेश्चन पे आ जाता है, देन एंड देयर कैंडिडेट विल बी विजिबल टू द प्रॉक्टर्स। तो प्रॉक्टर्स को 10-15 मिनट पहले से ही टेस्ट स्टार्ट होने से लॉगिन करके बैठना होगा और उनको वेट करना होगा। कैंडिडेट प्रॉक्टर्स को तब तक कैंडिडेट्स नहीं दिखते जब तक वो टेस्ट विंडो पे नहीं आता, और उनको दिखता रहेगा प्रॉक्टर्स को नो यूजर टेकिंग टेस्ट। जब कैंडिडेट्स इस पेज पे आएंगे पहले क्वेश्चन पे, तभी आपको प्रॉक्टर्स को दिखना स्टार्ट होंगे और एक एक करके ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। 1:30 का रेशियो, यानी एक प्रॉक्टर 30 कैंडिडेट्स को एट मैक्सिमम देख सकता है। प्रॉक्टर्स की क्या स्क्रीन होगी वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाई जाएगी। ये कैंडिडेट की स्क्रीन है। कैंडिडेट पर सेक्शन का नाम दिख रहा है, उसके साथ में नीचे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ऑप्शन है कि जब कैसे वो आंसर्स लिखे, आंसर शीट को अपलोड करें। कैंडिडेट को नीचे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, कैंडिडेट उस टेक्स्ट बॉक्स में आंसर्स लिख सकते हैं। या फिर उनके पास एक ऑप्शन है ब्राउज एंड अपलोड का। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कैंडिडेट क्या करेगा, एक मोबाइल फोन भी कैंडिडेट को चाहिए होगा। उस मोबाइल से अपनी आंसर शीट की इमेज को क्लिक करेगा, लैपटॉप में कनेक्ट करेगा अपना मोबाइल और वहां पे कहीं सेव करेगा और ब्राउज करके उसे अपलोड कर देगा। जो बच्चे फोन से ही टेस्ट ले रहे होंगे वो आंसर शीट क्लिक करेंगे, आंसर ब्राउज करेंगे तो शायद इमेज या गैलरी में कहीं आंसर शीट होगी, उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही आंसर शीट को अपलोड करना है, सभी क्वेश्चन की आंसर शीट एक साथ अपलोड नहीं होती है। और एक और ऑप्शन है जो हमारे प्लेटफॉर्म का फीचर है, स्टूडेंट्स को दिया हुआ, वो है अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल। एक बटन आपको दिख रहा है, बच्चे इस पे क्लिक करेंगे। जो लैपटॉप वाले बच्चे हैं वो जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उनके पास मोबाइल होना जरूरी है। जैसे ही क्यूआर कोड जनरेट हो जाए, प्लीज यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्यूआर कोड की एक वैलिडिटी होती है। इसके जनरेशन के बाद बच्चे को अपने मोबाइल फोन में किसी एक कोई भी एक एप्लीकेशन से, यानी कि कोई क्यूआर कोड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी वो, राइट। या फिर पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम को यूज करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। बच्चे के मोबाइल फोन पे ऑटोमेटिकली कैमरा का आइकन, उस पे क्लिक करेगा स्टूडेंट और उसको क्लिक करने के बाद उसका बैक कैमरा से इमेज क्लिक हो जाएगी उसकी आंसर शीट की। इमेज क्लिक करने के बाद बच्चा अपलोड कर देगा, ऑटोमेटिकली वो आंसर शीट सर्वर पे चली गई। अब बच्चे ने क्या आंसर शीट अपलोड करी वो दिख रही होगी व्यू अपलोडेड इमेजेस में। यानी हर कैंडिडेट अगर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट बहुत सारी आंसर शीट अपलोड कर रहे हैं तो वो देख भी सकते हैं कि उन्होंने आंसर शीट अपलोड कर लिया। आंसर शीट अपलोड करने के बाद देख लिया, अगर लगता है कि आंसर शीट सही नहीं हुई है या ब्लर्ड हुई है तो कैंडिडेट के पास ऑप्शन है उसे डिलीट करने का। इस आंसर शीट पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्लिक करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने अपलोड की है ना उस पे क्लिक करेंगे व्यू अपलोडेड इमेजेस में और डिलीट का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, जब आपने एक आंसर अपलोड कर दिया है अब आप नेक्स्ट पे मूव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। कैंडिडेट किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कुछ भी, तो अभी मैं आपको शो कर रही हूँ कि क्या कैंडिडेट कैसे आंसर करेंगे। इसमें टेक्स्ट बॉक्स में प्रणव आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी सैंपल ऐसे आंसर लिख दीजिए, ABCD लिख दीजिए और नेक्स्ट मूव करिए। मैं आपको एक फीचर और दिखा रही हूँ जिसमें कि जैसे लिखा है ऊपर सेक्शन में अटेम्प्ट 8, यानी कैंडिडेट इज अलाउड टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, जो क्वेश्चंस बच्चा आंसर करता जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन पैनल में उस क्वेश्चन का कलर ग्रीन हो रहा है। अब बच्चा मान लीजिए 5 क्वेश्चन पहले ही अटेम्प्ट कर लिए, ऐसे नेक्स्ट मूव कर करके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और 5 ही अलाउड थे। जैसे ही बच्चा छठे क्वेश्चन पे जाएगा तो उसके सामने क्या आएगा, आई विल शो यू दैट। ग्रुप में इतनी बड़ी वीडियो नहीं आएगी। बच्चा 5 अलाउड था, जैसे ही बच्चा कोशिश करेगा मैं छठा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लूं तो उसके सामने एक मैसेज आएगा, यू आर नॉट अलाउड, यू आर अलाउड टू ओनली अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन एंड यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड द अलाउड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है सर। नाउ व्हाट विल द स्टूडेंट डू, अगर उसको 6th क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आता है और उसने पहले 5 अटेम्प्ट कर लिए तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, प्रीवियस जाएगा, प्रीवियस मूव करेगा और उसको जिस क्वेश्चन में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है उस पे जाके क्लियर रिस्पॉन्स कर देगा। एक बटन आ रहा है क्लियर रिस्पॉन्स का, चाहे आपने आंसर शीट अपलोड करी हो चाहे आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हो, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स क्लियर हो जाएगा। यस
पे क्लिक कर तो वो आंसर डिलीट हो गया। अब कैंडिडेट जो है वो जाके 6th क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, यानी कि टोटल इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब आपने एक सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया तो अब आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करेंगे और उस सेक्शन में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप वो करेंगे। बच्चे को हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद टेस्ट को एंड करने की जरूरत नहीं है, उसके आंसर्स ऑटोमेटिकली सेव हो रहे हैं, सिर्फ नेक्स्ट और प्रीवियस मूव करना है। एंड टेस्ट का मतलब हो जाएगा आपने टेस्ट को पूरी तरीके से सबमिट कर दिया है और वो टेस्ट अब नहीं खुल सकता। तो ये स्टूडेंट के एंड का है। एक मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ, क्योंकि एक चैट ऑप्शन दिख रहा है, चैट विद प्रॉक्टर। अगर स्टूडेंट चाहे तो प्रॉक्टर के साथ चैट कर सकता है, और अगर प्रॉक्टर मैसेज भेजना चाहे स्टूडेंट्स को तो वो भी कर सकता है। Proctor can send a message to the student. Similarly, student can send a message to the proctor. So I'll just do that. Pranav, you can please send a message to the proctor. So this was the complete process for student. स्टूडेंट ने अगर गलती से ब्राउजर को क्लोज कर दिया या इंटरनेट चला गया, कुछ लैपटॉप बंद हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो स्टूडेंट के पास जब तक उसका टेस्ट ड्यूरेशन ऑन है तब तक उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो वापस लॉग इन करे और अपने टेस्ट को रिज्यूम कर ले। स्टूडेंट्स ने जहां पे अपना टेस्ट छोड़ा होगा वहीं से वो रिज्यूम बैक कर सकते हैं। Right, so abhi any questions related to a student screen, please let me know. We will start with the proctoring session also. I'll just share my screen. By the point in time these students will remain logged in. Allow me to share my screen if there are no questions related to candidates process. ये कैंडिडेट का प्रोसेस था। कैंडिडेट का प्रोसेस प्रॉक्टर्स को थोड़ा जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहला अपना क्वेश्चन जो है वो प्रॉक्टर्स के पास रखते हैं वाया चैट विंडो। तो आप लोगों को प्रोसेस जानना जरूरी है, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप ही आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स के पास एक मोबाइल नंबर जाता है उनके पास, जो कि उस पे IVR नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। There is no limit of students logging out and logging in during the assessment. मतलब वो कितनी भी बार लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन अगर टेस्ट को एंड कर दिया तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा उनको। जैसे स्टूडेंट को 8 में 5 क्वेश्चन करने तो वो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई एम अनेबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। सर जब लॉग आउट की कोई लिमिट नहीं है तो रीलॉग इन की भी लिमिट नहीं होगी। आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। सर मैंने आपको ऑलरेडी स्टूडेंट्स का सबमिटिंग आंसर्स का 3 तरीके बताए हैं, या तो वो लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, या फिर QR कोड स्कैन करेंगे, या फिर
कैंडिडेट्स जो हैं वो ब्राउज एंड अपलोड करेंगे, यानी अपनी इमेज खींच के कहीं रख लेंगे किसी जगह, उस पर ब्राउज करेंगे अपने सिस्टम में और उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। ये 3 के होते हैं के बाद। It is correct. 30 students visible in. यस एब्सोल्युटली, आपको मोबाइल से लॉगिन नहीं करना है ना सर, आपको लैपटॉप से लॉगिन करना है, तो बिल्कुल विजिबल होगा। अभी मैंने आपको स्टूडेंट की स्क्रीन दिखाई है, मैंने आपको प्रॉक्टर्स की स्क्रीन अभी विजिबल कराई ही नहीं है। Okay, ma'am. Ma'am, is the instructions are available in Hindi also? प्लीज पार्डन Ma'am, is Hello. instructions are available in Hindi also? सर, व्हाट इंस्ट्रक्शंस, व्हिच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू आर टॉकिंग अबाउट? Instructions which student will see. नो, इंस्ट्रक्शंस आर ओनली इन इंग्लिश। Ma'am, question is Hindi both? नो। Only English? यस। Excuse me, ma'am. Many of our students are from Hindi medium. How they are supposed to attend the paper? Sir, how have you created the question paper? Was your question paper given in Hindi also? I mean, did you submit the Ma'am, question paper to your respective ma'am, colleges or universities? Ma'am, paper is given to bilingual also by the जो पेपर सेटर है उन्होंने भेजा हुआ है, तो ये तो बाइलैंग्वेज होना चाहिए, वरना तो हिंदी मीडियम को दिक्कत आ जाएगा। Ma'am, many of our students from Hindi medium, they won't be able to understand instruction in English. Even ma'am, we also have the students who belongs to Hindi medium. सर, तो अगर आपने क्वेश्चन दिए और यूनिवर्सिटी से हमें जो क्वेश्चन पेपर मिले हैं, अगर उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा होगा तो वो दोनों हो जाएंगे, हमारे सिस्टम में जरूर दिखते हैं, बट अभी जो मॉक है वो इंग्लिश में ही है, लैंग्वेज में। मेरे पास ऐसा कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि ये इंग्लिश हिंदी दोनों में वो हो रहा है। अगर क्वेश्चन पेपर आए होंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। Excuse me, ma'am. Question paper will be in English in both languages. If we cleared question paper will be in Hindi and English in both languages. Thank you. The question will appear in front of the students in both languages in case it is provided us. Right? So the question will be bilingual. Like it doesn't matter whether it should be student will have a choice to select English or Hindi. ऐसा नहीं होगा, ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखा रहेगा। Ma'am, the question Can you is please explain once again the submission process? So we Ma'am, have to can you start please with the once explain the submission process? What sir? Please pardon. Please pardon your question. Question isn't complete and I couldn't understand the question that you're asking. Hello? Yes, hello, ma'am. What was your question? Yes, hello. I can hear you. Please Hello, go ahead ma'am. with your question. Sir, after hello, please I speak don't up. I und- can hear you. I don't understand like what is the procedure for the students to attend for the examination, because I don't see like network is going and coming and all are coming and going. So if you could please in short explain it, if you ma'am please can explain it one more time, so it would be really helpful for every one of us. That's Sir, all I I want to don't say. think Because, internet is. like in short, Whose in internet short, is going? in I'm very not short. able to understand you. Sir, we have to start I'm the telling you, proctor can you session please also. explain again everything in Sir, short? Sir, this was a student's process. I have to start with the proctoring window. I have not yet shared with you anything. This was a student's process that I've explained Okay, you. fine. Now let me Fine, start fine, with the fine. proctoring process. Yes, it has I not was yet there. started. I was there. Okay, fine. Sunil, can you please log in as a proctor and share your screen?
because I cannot share my screen right now. I'm not allowed to enter in the window. There are 100 people already who have joined. I cannot share my screen from another this because the microphone in the other device isn't working, and people have already, exceeded the limit. Because now also new people are joining in this meeting. हेलो ये दिशा जी बोल रही हैं। Wait for a few seconds. We'll be sharing our screen and showing you the complete process. दिशा जी एक चीज जानकारी चाहिए थी जी। मुझे ये बताएंगे कि क्या जो आपने अभी प्रेजेंटेशन दिया है इसकी एक स्लाइड या एक वीडियो बनाकर क्या बच्चों को प्रोवाइड की जा सकती है जिससे कि बच्चे उसको इजीली समझ सकें? सर बच्चों को मेल पे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया इस मीटिंग में कि बच्चों को मेल पे पीडीएफ इंस्ट्रक्शंस और वीडियो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी जाते हैं, तो वो बच्चों के ऊपर है कि कब तक मिल जाएंगे उनको मैडम? सर वो हर एग्जाम से पहले जाते हैं। जी मतलब पहले नहीं मिलेंगे, उसके जब एग्जाम शुरू होने वाले होंगे उस समय मिलेंगे? नहीं उस समय नहीं मिलते, एक दिन पहले मेल जाता है उनके पास सर हमेशा। जब भी बच्चों का कोई होता है एक दिन पहले सारे इंस्ट्रक्शंस वेबसाइट पे भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यानी कि यूट्यूब की वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हम एग्जामिनेशन रेडी किए हैं तो उसमें वीडियोस ऑलरेडी हैं, बट अपडेटेड ईमेल जो है वो बच्चे को पीडीएफ मैनुअल और 4 वीडियो मैनुअल्स है वो साथ में जाते हैं एक दिन पहले। यानी अगर आप कल मॉक है तो आज जाएगा, परसों वाले मॉक के लिए कल जाएगा, फाइनल एग्जाम के लिए हर एक दिन पहले जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू मैम। सुनील आप अपनी स्क्रीन जब तक प्लीज शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज टाइम जा रहा है एंड आई हैव अदर आल्सो शेड्यूल। या तो आप एक एज अ प्रॉक्टर लॉगिन करेंगे। प्रॉक्टर्स के लिए भी यूआरएल सेम रहता है बट लॉगिन आईडी पासवर्ड डिफरेंट होगा जो आपको शेयर किया जाएगा यूनिवर्सिटी द्वारा और आपके रिस्पेक्टिव सीएस को मिल जाएगा प्रोबेबली टुनाइट और इन द मॉर्निंग टुमारो। मॉक में आप चाहें तो रैंडमली लॉगिन कर सकते हैं। इट इज पासवर्ड @123 प्लीज। हाँ तो लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज फाइनल एग्जाम के दिन लॉगिन करके चेक करेंगे। proctor1 राइट। सो स्टूडेंट्स आपको जब कोई बच्चा लॉगिन नहीं होता, मानी स्टार्टिंग में नहीं आता, तो आपको दिखेगा नो यूजर टेकिंग टेस्ट। जब बच्चे ऑलरेडी लॉग्ड इन रहते हैं तो आपको इस तरीके से मल्टीपल बच्चे दिखेंगे अपनी स्क्रीन पे। आप देखेंगे ऑनलाइन यूजर्स लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिखा है, यानी अभी 2 बच्चे प्रेजेंट हैं आपकी स्क्रीन पे। जब 30 हो जाएंगे तो 30 दिखेंगे, 25 होंगे तो उस समय 25 दिखेंगे। ये एक रैंडम एलोकेशन होता है स्टूडेंट्स का आपकी स्क्रीन पे। आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज के ही स्टूडेंट्स जो होंगे वो विजिबल होंगे। अब स्टूडेंट्स जो आप देखेंगे इसमें कलर कोडिंग बड़ी डिफरेंट सी है। तो कभी कभी कैंडिडेट्स की आउटलाइन जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की जब स्क्रीन होगी तो उसका क्या मतलब होता है कि कैंडिडेट जो है वो टेस्ट विंडो पे बैठा है बिल्कुल क्लियरली और उसका इंटरनेट भी ठीक चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स जो कि इनएक्टिव हो चुके हैं और आप इनएक्टिव स्टूडेंट को प्रॉक्टर नहीं कर सकते, वो आपको येलो कलर में दिखेंगे। आप उसकी इमेज पे क्लिक करेंगे तो आएगा स्टूडेंट्स नॉट एक्टिव। आप अपने डेमो लॉगिन पे एक बार क्लिक करें यहाँ पे। यस ये डेमो लॉगिन जो है वो एक डेमो आईडी, उस पर नहीं क्लिक करें सुनील, आप डेमो लॉगिन पे ही क्लिक करें जो बच्चे का इमेज इसमें। हाँ आप अपनी इसमें क्लिक करें।
तो आपको दिख रहा है कैंडिडेट आईडी इज नॉट एक्टिव इन द टेस्ट, दैट मीन्स ये कैंडिडेट जो है वो एक्टिव नहीं है, इसने ब्राउजर को क्लोज कर गया और ये चला गया है। आप ये बच्चों को प्रॉक्टर नहीं कर पाएंगे, वो आपकी स्क्रीन पे इनएक्टिव दिखाता रहेगा। इस पॉपअप को क्लोज करें। दूसरा कैंडिडेट है जो कि रेड कलर में है, इस बच्चे का इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, टेस्ट तो दे रहा है, इंटरनेट कर रहा है, और दूसरा रीजन हो गया बहुत बार नेविगेट कर रहा है। तो इतनी बार टेस्ट से नेविगेट करते हैं किसी और विंडो पे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जिन बच्चों का इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है वो बार बार लॉगआउट हो रहे होंगे, लॉगिन करेंगे, या फिर बच्चे फोन से दे रहे हैं तो पीछे से कॉल्स आ रहे होंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस स्वाइप कर रहे होंगे, और ना जाने कितने पॉपअप्स आते हैं। जितनी बार बच्चा टेस्ट विंडो से हट के किसी और विंडो पे क्लिक कर देगा गलती से भी, उसके पास नेविगेशन वार्निंग आएगी और वो बात प्रॉक्टर को भी दिखती रहेगी। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट एक्टिविटी लॉग आ रहा है, वहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपको फर्स्ट नेविगेशन, सेकंड नेविगेशन इस तरीके से दिखा है। इस नेविगेशन का मतलब है बच्चा टेस्ट विंडो से किसी और विंडो पे गया, कहाँ गया आपको ये नहीं पता चलेगा, प्रॉक्टर्स को ये नहीं पता चलेगा बच्चा कहाँ स्विच किया, क्योंकि नेविगेशन जो है वो किसी भी रीजन से होती है। या तो आपके पास कोई कॉल्स आ रहे हैं, कोई पॉपअप आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर आप मोबाइल फोन से टेस्ट लेने वाले बच्चे हैं। अगर आप लैपटॉप से टेस्ट ले रहे होते हैं तो आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, जैसे कि ईमेल का नोटिफिकेशन आपने ऑन कर रखा है, एंटीवायरस अपडेट आ रहा है, विंडोज अपडेट आ रहा है। इन सब पॉपअप्स पे क्लिक करने के बाद भी आपको नेविगेशन की वार्निंग आती है, कैंडिडेट की स्क्रीन पे वार्निंग आती है, और प्रॉक्टर को भी पता चल जाता है इमीडिएटली कि बच्चे ने नेविगेट करा। नेविगेशन के टाइम जितनी बार नेविगेशन आएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम बच्चे का एक लिमिट होती है हमारे सिस्टम में कि हमने 30 नेविगेशन दे दी, 50 नेविगेशन दे दी और उसके बाद टेस्ट को ऑटोमेटिकली सबमिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम अलाउड नहीं है कि बच्चे के टेस्ट को सबमिट करना है, क्योंकि आपके 70-80% यूजर्स जो है वो मोबाइल टेकर्स हैं। तो जो बच्चे मोबाइल टेस्ट देते हैं उनके लिए टेस्ट को सबमिट ना हो, इसलिए हम उनको टेस्ट सबमिट नहीं करवाते हैं, उनको टेस्ट लेने देते हैं। आप लोग एज अ प्रॉक्टर जरूर नोट कर सकते हैं कि बच्चे का कितनी नेविगेशन वार्निंग आई। राइट, सो ये लेफ्ट हैंड साइड में एक तो नेविगेशन वार्निंग्स है, दूसरी वार्निंग्स देखिए, नो फ्रंट फेस फाउंड। नो फ्रंट फेस फाउंड का मतलब है इसको बोली जाती है एआई वार्निंग या प्रॉक्टरिंग वार्निंग, जो सिस्टम दे रहा है ऑटोमेटिकली। बच्चे को नहीं पता चल रहा है ये वार्निंग्स क्या हैं, लेकिन प्रॉक्टर को पता चल रही हैं। और ये वार्निंग कब आ सकती है? जब बच्चे का फेस विजिबल नहीं है प्रॉपरली कैमरा में, और ये वार्निंग्स बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगी। तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं है कि बच्चा अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा को सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, और सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने के लिए बच्चे को अपना फेस नीचे करना ही पड़ेगा। बच्चा आंसर शीट में लिख रहा होगा, तो ये वार्निंग आपके पास बार बार आएगी। अब प्रॉक्टर को ध्यान देना है कि कैसे प्रॉक्टरिंग करनी है। आपको चैट बॉक्स दिख रहा है राइट हैंड साइड में, उस चैट बॉक्स पे जाएंगे और बच्चे को मैसेज ड्रॉप करेंगे। मतलब वार्निंग देने का आपके पास एक ही तरीका है कि आप बच्चे को चैट में लिख के मैसेज करें। सुनील, आप प्लीज चैट बॉक्स पे क्लिक करें। आप बच्चे को कुछ भी टाइप्ड मैसेज करके भेज सकते हैं, या फिर एक सेलेक्ट टेम्पलेट आ रहा है नीचे, उस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ मैसेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली बने बनाए हैं, आप वो भी सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। सेलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने बोला सेट फोकस ऑन योर कैमरा ऑन योर फेस, इस पे क्लिक करा और एंटर मार दिया। एंटर करें, जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे एंटर कीज पे प्रेस करेंगे, ये मैसेज बच्चे के पास चला जाएगा। आप बस बच्चे को मैसेज के थ्रू ही वार्न कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बच्चे की स्क्रीन पे आपका मैसेज चला जाएगा और बच्चा उसका रिस्पॉन्ड करेगा अगर वो मैसेजेस को देखेगा तो, अदरवाइज वो एग्जाम देता रहेगा आराम से। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं चैट विंडो को। आपने मैसेज भेज दिया, वार्न कर दिया। अब आप बच्चे को देखना चाहते हैं बच्चा लाइव कर क्या रहा है, तो ऊपर आप देखेंगे लाइव फीड का एक बटन दिख रहा है। रूम स्कैन मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि रूम स्कैन में आपका इंटरनेट बैंडविड्थ और बच्चे का इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपको रूम स्कैन जो होता है वो एक वीडियो कॉल होता है इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चे के साथ। आप बच्चे से बात कर सकते हैं लाइव और बोल सकते हैं कि मुझे दिखाइए आपके आसपास का क्या सराउंडिंग है, क्या कर रहे हो।
तो ये तभी यूज करिएगा जब आप बड़े कॉन्फिडेंट हो कि आपका भी सिस्टम और इंटरनेट बहुत अच्छा है और बच्चे का इंटरनेट भी अच्छा है। अदरवाइज आपने जहां रूम स्कैन के लिए बच्चे को रिक्वेस्ट भेजी, वहां उसका टेस्ट वहीं के वहीं रुक जाता है, और इंटरनेट नहीं है तो बंद हो जाएगा, सही से नहीं चलेगा। तो तभी रूम स्कैन यूज करें बड़े वर्स्ट सिनेरियो में, जब आपको लग रहा है कि आप देखना ही चाहते हो कि बच्चा आसपास क्या कर रहा है। अदरवाइज लाइव फीड पे क्लिक करेंगे, तो लाइव फीड पे क्लिक करने के बाद आप बच्चे की लाइव वीडियो देख सकते हैं, उसकी ऑडियो सुन सकते हैं अपने आप। उसके लिए आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लाइव फीड में आप ही बच्चे को सुन पाएंगे और देख पाएंगे, बच्चा नहीं आपको देख पाएगा या सुन पाएगा। अगर ये बफर कर रहा है तो आपके इंटरनेट स्लो है। मिनिमम 2 to 4 Mbps की स्पीड तो चाहिए ही होती है प्रॉक्टर्स को मिनिमम। देखिए अब ये कैंडिडेट की लाइव वीडियो है, आप देख पा रहे हैं बच्चा कैसे हिल रहा है। आप अपना मतलब फेस हिलाएगा, कुछ राइट डाउन करेगा, किसी से बात कर रहा होगा, तो आप उसकी लाइव वीडियो देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये प्रॉक्टर लाइव वीडियो देख रहा है एक सिंगल कैंडिडेट की। जब आपने लाइव वीडियो देख ली, लाइव फीड पे ऊपर क्लिक करिए और बंद कर दीजिए। लाइव फीड पे क्लिक कर दीजिए वापस, और वो ऑरेंज कलर का बटन हो जाएगा और लाइव फीड बंद हो जाएगी। देन आ रहा है पॉज टेस्ट का बटन। पॉज का बटन इसलिए है, अगर आपको लगता है कि आप बच्चे को कुछ वार्निंग देना चाहते हैं चैट विंडो के थ्रू, आप चैट के थ्रू उनको मैसेज डालिए और बच्चे का टेस्ट को पॉज कर दीजिए। पॉज करते टाइम कि आपसे पूछेगा आई यू श्योर यू वांट टू पॉज द टेस्ट। आपने पॉज किया और उसी समय पॉज करने के बाद आप प्लीज उसे वार्निंग देने के बाद रेज्यूम भी कर दीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। आप पॉज करके भूल गए और आपने ये बच्चे का विंडो क्लोज कर दिया, दूसरे कैंडिडेट पे चले गए, तो ये बच्चा पॉज बैठा रहेगा और ये IVR नंबर पे कॉल करेगा वीबॉक्स की टीम को कि प्रॉक्टर ने मेरा टेस्ट पॉज किया था, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मेरा टाइम जा रहा है, प्लीज मेरे को वापस रिज्यूम करवाओ। और हमें आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉक्टर है जिसने की पॉज कर दिया, ठीक है। अदरवाइज मुझे बैकएंड पे देखना पड़ेगा कि कैसे मुझे उसको रिज्यूम करना है। तो आप जब भी बच्चे को पॉज करें, उसको जो वार्निंग देनी है वो वाया चैट बॉक्स वार्निंग दे दें और वापस उसको रिज्यूम कर दें प्लीज। आप पॉज करके भूल मत जाइएगा, ठीक है। वापस रिज्यूम कर दीजिए, इसी पे क्लिक करिए पॉज टेस्ट के बटन पे। आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू रिज्यूम द टेस्ट, यस करेंगे तो रिज्यूम हो जाएगा टेस्ट। और आप एक रिज्यूम करेंगे, 2 बार पॉज करेंगे, जितनी बार करेंगे उतनी बार आपके लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे भी मैसेज तुरंत आ जाएगा कि आपने कितने पॉज किया था और कितने बजे रिज्यूम किया। सारे लॉग्स हमारे पास सेव हो जाते हैं। प्रॉक्टर के साथ जितनी स्टोरी होती है वो सब सेव्ड रहती है सिस्टम में, कौन से प्रॉक्टर ने क्या चैट करा, किस कैंडिडेट को प्रॉक्टर किया। एक और बटन है टर्मिनेट का। टर्मिनेट का मतलब होता है कि आप बच्चे का टेस्ट एंड करना चाहते हो फोर्सफुली। आप बच्चे का टेस्ट अगर आप एंड कर दोगे तो हम इसको रिज्यूम नहीं कर पाएंगे, आप लगाओगे। तो टर्मिनेट बटन दिया जरूर है, लेकिन ये उस केस में यूज करें जब आप चाहते हैं कि बच्चा नहीं सुनता, अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है, उसके पास कोई बैठ के उसकी हेल्प कर रहा है, कुछ ऐसा फील होता है और आप चाहते हैं कि इसको पेपर देना ही नहीं है दोबारा, तभी इस बटन को यूज करें, टर्मिनेट कर दें और बच्चे का टेस्ट को एंड हो जाएगा। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है टेस्ट को रिज्यूम करने का। सबमिट मतलब सबमिट, चाहे वो प्रॉक्टर ने ही क्यों ना कर दिया हो। एक बटन दिख रहा है व्यू डेस्कटॉप का। जब आप व्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिख जाता है कि बच्चा टेस्ट स्क्रीन पे कौन से वाले क्वेश्चन पे बैठा है। आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा अच्छे से, क्योंकि ये इंटेंशनली किया गया है कि आपको कोई क्वेश्चन ना दिखे, प्रॉक्टर्स नहीं हेल्प करेंगे। आपने देख लिया बच्चा टेस्ट विंडो पे बैठा है, वापस इसको व्यू लाइव इमेजेस कर दीजिए, वापस आपको बच्चे की इमेजेस लाइव दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे फोन टेस्ट ले रहे होंगे उनका डेस्कटॉप नहीं देख पाएंगे, यानी अब आप व्यू डेस्कटॉप करेंगे, जो बच्चा मोबाइल से फोन टेस्ट ले रहा है आप उसका डेस्कटॉप नहीं देख पाएंगे, उसकी स्क्रीन नहीं देख पाएंगे, सिर्फ लैपटॉप यूजर्स की ही देख पाएंगे। एक बटन आ रहा है एनेबल ब्राउज एंड करने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट हैव टू क्लिक हियर, क्योंकि ये वाला ऑप्शन बच्चे के पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल है ब्राउज एंड अपलोड। ये तब यूज किया जाता है जब बच्चे के पास ये ऑप्शन ही ना हो कि कैसे ब्राउज करना है और अपलोड करना है, खाली QR कोड का ऑप्शन है और टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, तो प्रॉक्टर उसे चांस दे सकता है कि लो भाई ब्राउज एंड अपलोड यूज करो और अपनी आंसर। हाँ, क्योंकि हमने ऑप्शन ऑलरेडी बच्चों को दिया हुआ है तो आपको ये ऑप्शन को यूज तरीके से मॉनिटर करना है। हम ट्रेनिंग दे रहे हैं
तो हमने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया ये दिखाने में। आपको ये पूरा प्रोसेस, लाइव वीडियो देखना, पॉज करना, टेस्ट, चैट करना, सारी नेविगेशन वार्निंग देख लेना, 2 से 3 मिनट एक बच्चा लगाएंगे। क्रॉस का बटन आ रहा होगा यहाँ पे, उसको क्रॉस कर देंगे। ये ऊपर बच्चा रेड कलर का बटन आ रहा है एक कैंडिडेट की, उसको क्रॉस करेंगे और दूसरे कैंडिडेट पे चले जाएंगे। यानी आपको अगर 30 बच्चे मिले हुए हैं तो आपको 30 बच्चों के लिए एक एक करके ऐसे ही बार बार जाना है और 30 कैंडिडेट्स को प्रॉक्टर करना है। अब आपकी कैंडिडेट की स्क्रीन पे एक ही बच्चा दिख रहा है, दूसरा बच्चा नहीं है, ठीक है। और अब आप देखेंगे ऑनलाइन यूजर्स के पास में एक बेल आइकन आ रहा है, उस बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब है ये एक ग्रुप नोटिफिकेशन है। जैसे आपको पता है कि 2 बजे एज पर दी क्लॉक टाइम टेस्ट सबमिट होने वाला है, तो पहले ही जिस प्रॉक्टर जो है वो क्या करेंगे, अपने सारे बच्चों को एक नोटिफिकेशन दे देंगे, काइंडली अपलोड ऑल दी आंसर शीट्स क्विकली, योर टेस्ट विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली एट 2 PM। आपने ये मैसेज लिखा, सेंड कर दिया, ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन सभी बच्चों पे चला जाएगा जो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा ये होता है ग्रुप नोटिफिकेशन, ठीक है। अदरवाइज कोई चैटिंग करनी है आपको बच्चे के साथ, वो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। कोई बच्चा आपको चैट मैसेज भेजेगा, वो आपको नोटिफिकेशन लेफ्ट साइड में अपने आप दिख जाएगा। इस तरीके से बच्चे की स्क्रीन पे आएंगे, देखेंगे, प्रोसेस क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करिए। अब मैं दिखाती हूँ कि एक ये देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ रेड कलर में काउंटर्स में नंबर दिख रहा है। इस नंबर की प्लीज कोई लिमिट नहीं है, ये मत समझिएगा ये काउंटर 10, 20, 50, 30, 40, 100 हो रहा है तो बच्चे का टेस्ट क्यों नहीं सबमिट हो रहा। टेस्ट सबमिट नहीं होगा जब तक एंड नहीं होगा टेस्ट का टाइम, या बच्चे ने अपने आप नहीं एंड कर दिया या आपने टर्मिनेट नहीं कर दिया, तब तक टेस्ट सबमिट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही टेस्ट सबमिट हो गया यहाँ आ जाएगा नो यूजर टेकिंग टेस्ट। अब सारे बच्चे आपकी स्क्रीन से चले गए तो आप लॉग आउट कर सकते हो। अगर कोई बच्चे बैठे हुए हैं तो आप प्लीज लॉग आउट नहीं करेंगे जब तक सभी बच्चे प्रॉक्टर की स्क्रीन से डिसअपियर नहीं हो जाते। नेविगेशन वार्निंग्स की कोई लिमिट नहीं है, प्रॉक्टरिंग वार्निंग्स की भी कोई लिमिट नहीं है। ये प्रॉक्टर को खुद ध्यान देना है कि मुझे कब अलर्ट होना है, कब किस कैंडिडेट को देखना है। वार्निंग्स फ्रीक्वेंटली आ रही हैं तो जल्दी से जाइए कैंडिडेट स्क्रीन में, लाइव वीडियो देखिए, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको व्यू करनी होंगी, चैट करना होगा, ये सब आपका काम है देखना, एक इन्विजिलेटर का काम है, राइट। अब आप यही प्रॉक्टरिंग से रिलेटेड क्वेरीज थी, अब आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। एनी क्वेश्चंस? हेलो मैम। यस सर। मैम मुझे पूछना है कि प्रॉक्टर कितनी बार लॉगिन कर सकता है और कितनी बार जो है लॉग आउट करेगा? सर क्या वो एक ही बार लॉगिन करना? प्रॉक्टर को लॉग आउट नहीं करना है, बिल्कुल भी लॉग आउट नहीं करना है। किसी कारणवश अगर वो इंटरनेट की दिक्कत, सर इंटरनेट की दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत ही लॉग इन करेंगे। अच्छा, आपको तुरंत मतलब लॉग इन ऐसा तो नहीं करके है? बैठ जाना है। जी मैम, मतलब कहने मतलब ये कि अगर वो एक बार गलती से या किसी कारण नेट के कारण अगर वो नेट चला गया तो दोबारा लॉगिन करेंगे तो उतने ही बच्चे हमारे स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? दिखाई देंगे सर। कुछ बच्चे हो सकता है रैंडमली दूसरे प्रॉक्टर को भी एलोकेट हो गए हो उस बीच में, तो इसीलिए कहा जाता है आप इमीडिएटली लॉग इन कर लें। जी। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। मैम क्वेश्चन? या बताइए सर। सर मैम माय क्वेश्चन इज दैट सर आपका क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा, पीछे से किसी और ने भी अनम्यूट कर रखा है। प्रॉक्टर खुद लॉग आउट हो गया तो क्या उससे एग्जाम बाकी हो जाए? पॉज होगा सर, बच्चे तो टेस्ट देते रहेंगे, प्रॉक्टर लॉग आउट हो गया तो बच्चों का पॉज होगा। आपको लॉगिन तुरंत करना है।
अगर प्रॉक्टर ले जाएंगे तो बच्चे के टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बच्चा जो है वो अनप्रॉक्टर्ड रह जाएगा। आप ध्यान दीजिए इस बात को। अगर प्रॉक्टर्स लॉग आउट कर गए तो बच्चे के टेस्ट पे बच्चा अनप्रॉक्टर्ड बैठा हुआ है। कुछ बच्चे रैंडमली एलोकेट हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं हो पाएंगे, वो टेस्ट ऐसे ही देंगे। और ये बात पता चल जाएगी एक सीएस को, आपके कॉलेज में सीएस होगा, उन्हें बच्चा जो है वो कोई प्रॉक्टर में देख नहीं रहे। मैम एक और है। हेलो मैम, जैसे टाइमिंग है 10 से 1 बजे, तो क्या एक्स्ट्रा टाइम है यहाँ पे, कोई प्रोविजन है क्या एक्स्ट्रा टाइम देने का? नहीं सर, एक्सक्यूज मी मैम, नहीं सर, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। 1 बजे सिस्टम भी सबमिट कर देगा। मैम वन मोर क्वेश्चन। No, no, proctors cannot give extra time to the Okay, ma'am, one more question. If any student wishes to go to washroom or somewhere, can proctor allow? So that completely depends upon you. अगर You as an invigilator, do you want to really do that? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Any more questions related to proctoring? Ma'am, Hello, can ma'am. you please explain the QR method? प्रॉक्टर भी मैम विजिबल होगा क्या स्क्रीन पे? मैम QR मेथड आप स्टूडेंट का प्रोसेस देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको तो दिखेगा नहीं प्रॉक्टर की स्क्रीन पे। क्या आपको स्टूडेंट का प्रोसेस देखना है? प्रॉक्टर नहीं देख पाएंगे वो चीज। अगर आपको वीडियोस चाहिए या मैनुअल्स चाहिए, कैन वी सेंड दैट मैनुअल्स टू यू, दैट इज लाइक रिक्वायर्ड। Okay, ma'am, I will go through the manuals then. नहीं, आपको क्योंकि स्टूडेंट का प्रोसेस प्रॉक्टर्स को भेजा नहीं जाता है। अगर आपको चाहिए तो स्पेसिफिकली हम मतलब यूनिवर्सिटी देंगे प्रोवाइड स्टूडेंट। All right. Hello, ma'am. Yeah. Ma'am, is proctor will be visible on the screen? Whose screen, ma'am? Candidates? Yes, ma'am. No. Proctors will not be visible on candidates screen. Only the chat window is available, and proctor will know कि उनका कैंडिडेट को ये पता रहेगा कि उनका proctor कौन है, like proctor 1 है, proctor 2 है, proctor है, ऐसे करके पता रहेगा। और proctor कैंडिडेट सिर्फ आपसे chat window के थ्रू ही कनेक्ट रह सकते हैं। हेलो मैम। Ma'am, one question please. As a proctor, can we log in with a mobile set? No, not allowed, sir. Okay, ma'am. आप 30 कैंडिडेट्स को प्रॉक्टरिंग किसी भी तरीके से मोबाइल फोन से नहीं होनी चाहिए। Okay, ma'am. Thank you. मैम, आई हैव एन क्वेरी। तरीके से स्टूडेंट प्रॉक्टर के साथ चैट कर रहा है, इफ एनी कुछ ऐसा मान लीजिए कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम है और उसको तुरंत कांटेक्ट करना है हायर अथॉरिटी से, चैट बॉक्स ऐसा होगा जिससे वो प्रॉक्टर उस क्वेरी को फॉरवर्ड कर दे अपने सीनियर को? सर को बिल्कुल फॉरवर्ड कर सकते हैं आप अपने बच्चे के पास मोबाइल नंबर है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वहां करें। बेटर तो यही होगा कि कुछ क्वेरीज आप लोग कर देंगे, अदरवाइज बच्चे को क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व QR सिर्फ IVR पे कॉल करने के बाद ही हो। जो हम नंबर देंगे उस पे कॉल करके ही क्वेरीज के आंसर दें। नहीं तो फिर वो मैम लॉग आउट हो जाएगा ना, क्योंकि वो कॉल करेगा फिर आपको। सर तो वो तो होना ही पड़ेगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे ऐसे ही करना पड़ेगा। मेरा कहना ये है, चैट बॉक्स में कोई क्वेरी आई और हम डील नहीं कर पाए प्रॉक्टर लेवल पे, तो हम उसे आपको फॉरवर्ड कर दें, वैसे ही चैट बॉक्स कोई होगा हमारे लिए? नहीं सर, नहीं, आपके पास ऐसा चैट बॉक्स नहीं होगा। सिर्फ CS का एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप का ग्रुप, CS उसमें मैसेजेस डाल सकते हैं, बट बच्चे को बार बार यही बोलना है आपने भी कि प्लीज आप IVR नंबर पे ही कॉल करें अपनी क्वेरीज के लिए। थैंक यू। Any other questions? Hello, please check chat box, ma'am. I have put the question in that. Sir, can you please repeat the question? You can ask the question here verbally. I have not seen the chat box.
What is the question? Please question. Ma'am, how much data will be used in the session? Ma'am, we do not have the knowledge about internet data that will be required. We can just tell you how many Mbps speed will be required. That completely depends upon you, that you know what data you would be using. Students will be getting that data. At least 5-6 MB, GB data you should have in a day. 3 hours proctoring would be there. Okay, ma'am. Thank you. And this is a hypothetical figure. I'm telling you, there is no fixed data limit that we have, anytime experienced, and we have to share with proctors or students. We just share the speed limit that is required. Thank you, ma'am. Ma'am, good Any further afternoon. questions? Yeah, good afternoon. My question is that if in case there is an incorrect question and it needs to be changed, in that circumstances, what we have to do as a proctor? Sir, if the student needs to change anything in a particular question, so if the student needs to change the answer for a particular question, is that your question? What you need to do in that case? Ma'am, good afternoon. Abhishek Chauhan this side from State ISM New Delhi. Yes, sir. Ma'am, actually the question was, if the question paper has a wrong question which is out of syllabus or out of course, then what needs You cannot do anything in that case. Once the question paper is uploaded, it is uploaded. You cannot do anything. We also cannot do. Now that is presented in front of the student. He has a choice to attempt that particular question, or he can answer any other question, because there are more questions displayed on the screen than to be attempted. He can choose another question. Question paper cannot be changed. So that means there would be choices, in fact, ma'am. Plenty full of choices for the students. Sir, I have already shown the screen to you for the students also. In a section, out of 8 questions, he is allowed to attempt 5 questions, right? So now he has a choice which 5 questions. Right, ma'am. Thank you, sir. Hello. Yeah. Krishna ma'am. Hello. Good afternoon. Ma'am, please, if one person is asking questions, can others please mute yourself? Can you please mute yourself, everybody? I am muting people and they are again and again coming back and again unmuting themselves. Can you please mute yours? One by one questions, queries will be taken of each and every person. This is creating disturbance. I'm not able to hear the right question. Hello. Please mute yourself. Yeah. Hello. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. मैम प्रॉक्टर या CS मोबाइल यूज कर सकते हैं मैम? सर नहीं यूज कर सकते, मैंने अभी ऑलरेडी बताया है इस चीज के लिए. आप कैसे प्रॉक्टर करेंगे 30 कैंडिडेट्स को मोबाइल पे? आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी होगी कि आप लाइव वीडियो भी देख पाए, चैट भी कर पाए हर बच्चे से, नोटिफिकेशन भी दे पाए. आपको सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप ही यूज करना है या डेस्कटॉप यूज करना है. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. हेलो. हाँ, 1 मिनट. CS सर, COE सर कुछ बोलना चाह रहे हैं. म्यूट कीजिए आप. जी सर. अब मेरी थोड़ी बात ध्यान से सुनिए. सभी को नमस्कार. डॉक्टर्स हमारे हैं जैसे हुए हैं, जो ये एग्जामिनेशन करा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए और के लिए भी. नई चीज है, नया काम है हम सब के लिए, जिसका 7 सेमेस्टर करा लिया. म्यूट के लिए सभी अपना 7 सेमेस्टर हम काफी एक्सेलेंट रिजल्ट हुए. 97-98% तक हम लोगों ने सफलता प्राप्त की. उस एग्जामिनेशन का है थोड़ा सा वो आपके साथ लोग 90% इसमें पहली बार इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं.
देखिए, दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। इस्तेमाल करेंगे मोबाइल फोन ही। वजह उसकी, क्योंकि 30 बच्चे या 25 बच्चे हर प्रॉक्टर स्क्रीन पर परमानेंट लाइव है, इसके लिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप अपनी कनेक्टिविटी का तो प्रॉपर ध्यान रखेंगे ही, किसी तरीके से लॉग आउट आप ना हो ये ध्यान रखेंगे। अगर बाई चांस किसी वजह से हो गया तो तुरंत लॉग इन करिए। जैसे ही आप लॉग आउट होंगे बच्चा आपके स्क्रीन से हट जाएगा, दोबारा लॉग इन करने में फिर दिक्कत आती है, दोबारा पर आने में भी आती है बच्चों के। लॉग आउट किसी भी हाथ में प्रॉपर नहीं होना, सीएस को नहीं होना, इस बात को एश्योर रखें। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर इन्वर्टर किसी से जुड़ा हो, आपको प्रॉपर अटेंशन रहना है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, जो सबसे का मॉक टेस्ट जो होना, बच्चा मॉक टेस्ट करेगा, जहां से अभी एग्जाम दिया है वहां एक्टिविटी सिक्योर प्लेस पे चला जाए, वहां का मॉक टेस्ट करके देख ले। अपनी कनेक्टिविटी का ध्यान बच्चा खुद रखेगा तो एश्योर आप अपने लेवल से भी करा दें, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। उसमें कोई नहीं ना आपके द्वारा ना हमारे। तो ये ध्यान रख। सबसे इम्पोर्टेंट बात है थर्सडे में काम नहीं करना। पहला दिन लॉग इन होगी, जैसे हम लोगों ने रखी है 10 से लेकर एग्जाम फर्स्ट 10 से लेकर 1 बजे तक पहली शिफ्ट में रखा है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है, 2 से 5 दूसरी शिफ्ट में रखा है। अब 10 से 1 जो एग्जाम है उसमें हम लोगों ने 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक लॉग इन रखी है, टाइम रखी है। 9:30 से लेकर 10:30 तक लॉग इन बच्चा कर सकता है। होता क्या है, लगभग 80% बच्चे 85% बच्चे लॉग इन कर लेते हैं। 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पर करते हैं, या उनको दिक्कतें थोड़ी सी आती हैं कनेक्टिविटी की वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से। तो उसमें एकदम से नहीं आपने वो अपना धैर्य खोना है, थोड़ा सा संयम बना के रखना है, जिससे एकदम ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि पता चला कि बहुतों के एग्जाम छूट गए, वो हल्ला शुरू हो गया। तो इस केस में भी बच्चे से भी आप कहें प्रॉपर समय में पहले कर ले। इसके लिए बच्चे के पास भी IVR नंबर हैं, हेल्प नंबर्स हैं, उन पे फोन करके बात करेगा। हेल्प नंबर के बारे में भी आप जान लें कि जैसे आपने बाकी देखे हैं कि पोर्टल्स पे जो हेल्प नंबर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के पोर्टल हो, आप होता क्या है देखिए कि आप 10 नंबर 20 नंबर या 25 नंबर हेल्प नंबर्स होते हैं। अब बच्चा आपका जो एग्जाम दे रहा है, इस समय जो एग्जाम दे रहा है वो 8000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। एट ए टाइम 100 से 200 कॉल मान लीजिए आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 25 आदमी हैं जो कॉल अटेंड कर रहे हैं, जो उसकी समस्या समझेंगे, उस समय किसी दूसरे बच्चे ने किया तो वो होल्ड पे रहता है। होल्ड पर है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट होल्ड रखे, थोड़ा सा संयम रखे, उसकी भी बात सुनी जाएगी, उसकी भी समस्या का समाधान होगा। ऐसा ना हो कि बच्चा कॉल करता है, पता चला कि आधा मिनट देखा, अरे होल्ड भी हो रही है, उसने तुरंत आपको अवगत कर दी, आपने CS को बता दिया, CS ने ग्रुप में लिखना शुरू कर दिया। सो इन सब मैटर्स में थोड़ा सा संयम रखेंगे। सभी का लॉगिन होगा, सभी लॉगिन करेंगे। IVR नंबर्स भी एजेंसीज के लगातार काम करते रहते हैं। इसके अलावा अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आपके जितने CS है उन सबको ग्रुप बना रखा है, वो ग्रुप बनेगा। उस पर भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो प्रॉक्टर्स हैं, अगर कोई समस्या बच्चे से आ रही है, जैसे लॉगिन की शुरुआत होगी और अपलोड, 2 ही समस्या बच्चे को आती है, पढ़ने में दिक्कत होती है।
ठीक है, दोनों चीजों का प्रॉपर हम लोगों ने ध्यान रखा है। दोनों चीजों में आप CS मिल के एजेंसी के साथ ग्रुप के साथ कार्य करते हुए बच्चे को मदद करिए। मान लीजिए प्रॉक्टर्स को दिखाई पड़ रहा है कि बच्चे को कोई समस्या आ रही है, वो अपने CS को इन्फॉर्म करे, उसमें भी देख ले। जैसे लॉगिन की समस्या है तो लॉगिन की समस्या प्रॉक्टर खुद करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा संयम रखेंगे, लॉगिन हो जाएगी। नहीं हो पा रही है 5-7 मिनट 10 मिनट लगातार करने के बाद भी, तो CS को रिपोर्ट करें। CS जो है ग्रुप में आप लिख सकते हैं, एजेंसी वाले आपको मदद करेंगे। अगर IVR नंबर से भी आपका काम नहीं हो रहा उस बच्चे का, तो ग्रुप में आप लिखें।